All right. So today is our first class of the batch, and we are starting with percentages because of two reasons. One, that it is a base chapter. It is a chapter जिसके basics and techniques, calculation techniques are going to help you throughout the arithmetic and even in DI questions, quant based questions throughout, है ना? So it forms like a good basis and good starting point. And secondly, कि ये हम स्कूल में पढ़ चुके हैं. Percentages largely everybody knows, है ना? So it's a comfortable chapter, something that we know of. And when you start with something that you know of, it's more comfortable because you're starting a journey. So many new variables, syllabus is new, exam pattern is new. तो सब कुछ new अच्छा नहीं होता है एक ही साथ, right? That's why we are starting with a chapter which we are much more familiar with. ठीक है? All right. So I hope you all can see the screen and that you all can hear me really well. है ना? चलो, cool. So let's start with percentage. ठीक है, अब basic question, what is percentage? So percentage is nothing but per cent. Cent is what? 100. तो basically what happened is कि एक पैरामीटर था ना, लोग जैसे some time ago, long back, when things were invented, let's say people started weighing things, right? Now I was, let's say, in one corner of the world and I saw this thing and I was like, this is my weight, right? अब इसके basis पे I'll measure if something is half this weight, something is double this weight, something is heavier than this, or something is lighter than this, right? Then in some other part of the world, somebody else came and is like, this is going to be my base. Now, according to the base, right, I'll consider this as 1 unit. And according to this 1 unit, I will measure if the other thing that I have in hand is lighter than this or heavier than this. Then suddenly trade and all started, people started interacting with one another. And now इस कंट्री का इंसान और इस कंट्री का इंसान एक दूसरे से मिले और फिर इनको 1 किलो ऑफ सामान या 1 यूनिट ऑफ सामान ट्रांसफर करना था, बट वो कर ही नहीं पाए बिकॉज इनका 1 यूनिट अलग था और इसका 1 यूनिट अलग था, राइट? सो ड्यूरिंग दिस टाइम people decided that no, throughout the world we need one measurement only, right? So that everything is unified. If in eastern corner of the world, if in America I say 1 kg and if in Russia I say 1 kg, it should mean the same, right? And that is how then came up a block, right? There's a 1 kg block. It's kept in a museum. After the class you can like search ki 1 kg kya tha. But universally nature ne to nahi banaya, humans ne banaya. The humans one day came and they're like, this we will call 1 kg. This is 1 kilogram. अब इसके हिसाब से everything else will be weighed as 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg. In the same way, percentages, when people decided that for every number, for any quantity of measurement, we will take 100 as the base. है ना? And we will ask कि per 100 how much is it? है ना? For example, even to take the context of CAT exam. In CAT exam, all 3-4 of you must have studied from different boards. कोई ICSE board से सीखा, right? कोई Okay. Somebody studied from ICSE board, somebody studied from CBSE board, etc. अब सबके मार्क्स अलग अलग थे. किसी को आउट ऑफ 650 मिला 10th में, किसी का टोटल 550 था, किसी का टोटल 400 था, etc. राइट? अलग अलग बेसिस थे. अब उसके ऊपर सबको अलग अलग मार्क्स मिले. लेट्स से इसको 400 मिला, इसको भी 400 मिला और इसको भी 400 मिला, है ना? सबको सेम मार्क्स मिले. नाउ फॉर MBA admissions you have to tell how much score did you get. अब all these people will say I got 400, and then B schools will be like, oh, they all are equally intelligent. Is that fair? Is that correct? Are they all equally intelligent? No, definitely not, right? Because this person got full marks, 400 out of 400. Well, this person lost 250 marks, right? So basically, so to say, point is कि they decided कि नहीं ऐसे नहीं होगा. ऐसे मत बताओ, मुझे बताओ कि अगर तुम्हारा पेपर 100 मार्क्स का होता तो तुम्हें कितने मार्क्स मिले होते हैं, है ना? फिर ये बोलता मुझे 100 on 100, ये बोलता मुझे 90 on 100, ये बोलता मुझे 70 on 100 मिले. So then you're like, oh, now I know that this person is more intelligent. So that is why 100 was taken as a base. कि people over like around the world decided कि हम 100 को base लेंगे. Now per 100, percent is per 100. क्या value आई ये हमें बताओ so that we can compare different things. Did you understand what is percentage? Percentage is value of anything per 100. ठीक है? समझ गए? You guys can give me thumbs ups if you understand. Yes, ma'am. That side, okay? Just write yes or give thumbs ups, okay? ठीक है, चलो. So this is what percentage is. अब percentage का सबसे ज़्यादा relation होता है with fractions and decimals. All right. So with fractions and decimals what happens is, अभी हमने देखा कि अगर कोई fraction है, let's say 4/5, है ना? अब हमको बताना है 4/5 is what per 100. उसका परसेंटेज निकालना है, मतलब it's what per 100. So we'll be like this is equal to 4/5 into 100, right? है ना? तो any fraction multiplied by 100 gives you percentage. Same goes for decimal. 0.8, है ना? 0.8 को into 100 करोगे तो आएगा 80%.
ठीक है. सो फ्रैक्शन एंड डेसिमल को परसेंटेज कन्वर्जन वर्सेस परसेंटेज को फ्रैक्शन एंड डेसिमल कन्वर्जन इज द मोस्ट क्लासिक calculation that you will find throughout your arithmetic and throughout quants wherever numbers are there, right? So any fraction or a decimal into 100 gives you a percentage value, right? And उल्टा कोई भी percentage value को we will divide by 100 to get a fraction or a decimal. ये यहाँ तक सॉर्टेड है. हम फ्रैक्शन डेसिमल को इंटू 100 करो और परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 करो तो तुम्हें वैल्यूज मिलती है. ठीक है. इफ यू वांट आई कैन गिव यू छोटा सा एग्जांपल. अगर हम लेंगे तो यही हो गया हमारा कि 4/5 इंटू 100 इज 80. तो ये हो गया 80%, है ना. वर्सेस अगर 80% है तो दैट इट इज इक्वल टू 80/100 विच इज 0.8. या इसी को 4/5 भी बोलेंगे. तो ये कन्वर्ट हो गया इन अ, ठीक है, फ्रैक्शन को भी डिवाइड बाय 100 कर दिया. ऑलराइट, चलो गुड. अब दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग यू विल फाइंड इन, मोस्ट क्रूशियल एंड अंडररेटेड बाय द वे, जस्ट टू टेल यू. बिकॉज बच्चों को स्टार्टिंग में जब बताते हैं ये मेमोराइज करो, बच्चे मेमोराइज करते नहीं है. बट दिस कैन बी सच अ बिग गेम चेंजर इन योर क्वांट्स पेपर. आई कांट इवन टेल यू. ठीक है. एंड अगर तुमने ये मास्टर कर लिया ना, यू विल बी इन अ पोजिशन वेर यू आर better than I am at calculations if you completely absorb these values. These are popular percentage values that you must remember. ठीक है. ये कुछ values तुम्हें already पता है. These you're already aware about, right? 1/1 is 100, 1/2 is 50, 1/3 is 33.33, 1/4 25 and 1/5 is 20%. You're already aware about these values. You should be aware ऐसा भी और ऐसा भी कि तुम्हें कोई परसेंटेज दिख गया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है. ओके. सो दिस इज वन, है ना. इसके अलावा हाउ डू यू रिमेंबर अदर थिंग्स? I don't know if you have watched my reel. If you have watched my reel on Instagram, you would know I had taught something called as a halving technique. What is a halving technique? That half करते जाते हो. मतलब जैसे 1/2 है, 1/2 का हाफ 1/4 है, 1/4 का हाफ 1/8, राइट. 1/8 का हाफ 1/16, है ना. तो अगर ये हाफ हाफ है तो इनके परसेंटेज वैल्यूज भी हाफ हाफ हो रहे हैं. देखो 50%, उसका हाफ 25, 25 का हाफ 12.5, 12.5 का हाफ 6.25. देखो करस्पॉन्डिंग परसेंटेज वैल्यूज भी वैसी ही है. ठीक है. तो ऐसे ही तुम हाफिंग टेक्निक से बाकी वैल्यूज याद कर सकते हो. लेट अस टेक सम अदर, अरे लेट अस टेक सम अदर हाफिंग टेक्निक. कैसे करेंगे हम? लेट अस टेक 1/3. 1/3 इज 33.33, राइट, 1/3. उसका हाफ 1/6, उसका हाफ इज 16.66. अब इसका हाफ क्या होगा? 16.66 का हाफ होगा 8.33, जो होगा 1/12, बिकॉज 1/6 का हाफ 1/12 होता है. आ गया हमारा 1/12, 8.33 आ गया ना. तो ऐसे हम परसेंटेज वैल्यूज रिमेंबर कर सकते हैं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दिस टेबल आई प्रोवाइड यू सेपरेटली ऑल्सो. ठीक है. इन योर शीट, बाय द वे, यू सी ऑल द पीडीएफ्स एंड स्टडी मटेरियल, सब कुछ अटैच्ड विद द सेम प्लेस वेयर यू विल फाइंड द रिकॉर्डेड वीडियोस. लेसन प्लान है ना तुम्हारा, यू सॉ लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, देयर इज लेसन प्लान. वहां पे सारे पीडीएफ्स एंड स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस शीट्स, एवरीथिंग इज अपडेटेड. ठीक है. यू कैन लुक एट इट देयर. उसके अलावा और क्या है? और हमारे ये वैल्यूज है, ये वाला टेबल, ये वाला टेबल. ये वाला टेबल कैसे हम याद रखेंगे? दिस इज बेसिकली 1/3 is 33.33. तो 2/3 is what? 100 minus 33.33, right? Which is 66.67 या 66.66, जो भी approximations. 1/4, 3/4, 1/5, 4/5. समझ गए? ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है. तो 100 minus 25, 75 हो गया. 1/5 is 20%, तो 4/5 हो जाएगा 80%. वैसे ही 1/9 is 11.11. तो 8/9 will be 100 minus 11.11, that is 88.88 या 88.89, जैसे भी तुम रिमेंबर करना चाहो. ठीक है. सम अदर वेज टू रिमेंबर, कुछ कुछ इसमें से और ये है कि जैसे 1/7 है ना, ये 1/7 जो होता है वो 14.28 करके याद रहता है. 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 14 2 जा. और वैसे ही 1/14 को हम याद रखते हैं 7.14. अगेन 7 2 जा 14, यहाँ पे 14 2 जा 28, ऐसे करके हम याद रखते हैं इनको. So these are certain techniques. ठीक है. बाकी I have tried कि approximations ऐसे रखूं मैं. 1/15 is 6.66. It's not just 6.66, but मैंने इसको 6.66 से थोड़ा बड़ा है, but हमने इसे remember करने के लिए we've kept it. This is also 7.69. It's not 7.7, but we made it 7.7 because it's easier to remember. Approximations है ना. So I hope you all will memorize it to the core, absorb it in your blood system, because this will help you a lot. And during practice also हम class में करते रहेंगे. Now these are some values.
Similarly, these are other set of values. These are set of values when you remember that अगर 0.5 होता है ना, तो usually base is 8. 1 by 8, 3 by 8, 5 by 8, 7 by 8. Odd numbers, 1, 3, 5, 7. And similarly, 1, 3, 5, 7, 16 का base है. 1, 3, 5, 7, 7 के बाद यहाँ 9, 11, 13, 15. ये बेस है, तो यहाँ पे भी 2.25 और 0.75 आता है. ठीक है. एंड द वे टू रिमेंबर इट इज सम थोड़ा सा, इफ आई कैन टेल यू, द वे टू रिमेंबर इज कि जैसे अभी हमें 1/8 की वैल्यू लर्न कर ली हमने, 12.5 है. अब 3/8 विल बी 3 टाइम्स दैट, राइट. अब हमको तो पता है 0.5 आएगा. 0.5 क्यों आएगा? क्योंकि 8 है बेस में, है ना. और 37 इज क्लोजेस्ट टू 12 3 36, राइट. तो जब तुमको 37 दिख गया, तुम अज्यूम कर सकते हो कि 0.5 है, तो बेस में तो 8 रहेगा. एंड 37 इज वेरी क्लोज टू 36. इसका 12 3 36, दैट्स व्हाई दिस शुड बी 3/8. वैसे ही देखो, ये 62 इज वेरी क्लोज टू 12 5 60. तो तुमको 0.5 दिख गया बेस में, तो तुम्हें पता होगा बेस 8 होगा. सॉरी, डेसिमल में 0.5 दिख गया, तुम्हें पता होगा बेस 8 होगा. एंड देन 12 5 60 वी नो, बिकॉज यहाँ पे 12 है ना बेटा, इसलिए मैं 12 बोल रही हूँ, है ना. 1/8 के बेस में 12 है. सो देन यू रिमेंबर इट इज 5/8. ऐसे. एंड सिमिलर थिंग अप्लाइज हियर, और यू कैन मेमोराइज ऑल्सो. ठीक है. सो दीज आर सम पॉपुलर वैल्यूज दैट यू शुड कीप इन योर माइंड, एंड वी विल बी यूजिंग देम थ्रू आउट आवर कैलकुलेशन नाउ. ठीक है. सो दिस इज द बेस. वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस अभी. ओके. अच्छा नहीं, ये कॉन्सेप्ट बचा है. या दिस वन थिंग. सो कैलकुलेशंस जो हमारे होंगे वो 3 बेसिस पे होंगे. देयर विल बी 3 बेसिस फॉर इट. एक कैलकुलेशन होगा x परसेंटेज ऑफ y, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल दे आस्क यू टू फाइंड व्हाट इज 20% ऑफ 600. इसका ट्रांसलेशन क्या होता है? 20% इज 20/100, राइट. ऑफ इज मल्टीप्लीकेशन एंड 600 इज 600. नाउ यू कैन सॉल्व, है ना. दिस बिकम्स 120, right? So x% of y. This is our first calculation. ठीक है. Another calculation is x% more than y. ठीक है. x% more का क्या मतलब होता है? 1 plus 20% of 600. Because now you are like more. तो सिर्फ 20% नहीं, 20% more. So 20% more is signified by 1 plus 20%. Which will be again 20% is 20/100 और 0.2. इसको हम 0.2 भी लिख सकते हैं. 20% को 0.2 लिख सकते हैं. This is 1.2. 1 plus 20% is 1.2 of 600, which is 720, right. दूसरा फिर x% लेस क्या होगा? 1 minus of 600. So this becomes a 0.8 of 600, that is. समझ गए? तो ये बेस कैलकुलेशन तुम्हारा थ्रू आउट हो. यहां तक एवरीबडी इज विथ मी? Yes, ma'am. या ओके. Yes. यस, गुड गुड, वेरी गुड. चलो, अब वी विल, one thing is I want you guys to probably on your phone quickly click a snapshot of these values, because अभी तो हमने मेमोराइज नहीं करी है, राइट. इसको ना स्क्रीनशॉट ले लो लैपटॉप पे या फोन पे, अभी क्लिक कर लो, बिकॉज वी विल बी यूजिंग इट इन क्लास, है ना. एंड यू डोंट हैव इट विथ यू. सो आई होप यू हैव डन इट. एंड इसको हम यूज करना सीखेंगे अभी. ठीक है. सो हियर कम्स. ठीक है. दीज आर कैलकुलेशंस. अभी तो कैट एग्जाम में इतना सा आता नहीं है ऑब्वियसली, बट ये नंबर्स आ सकते हैं इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस. लाइक देयर कैन बी अ वर्ड प्रॉब्लम वेयर इन दिस कैलकुलेशन इवेंचुअली कम्स इन, राइट. सो नाउ यू हैव टू डू 62.5 ऑफ. अब इसको ट्रेडिशनली अगर हम करने जाए तो ये 62.5 मतलब 62/100 into 288. Definitely a complicated calculation, which if we go on to do in CAT exam, तो obviously we are wasting a lot of time. That's not advisable. तो कैसे होगा फिर? Refer to the table. 62.5 क्या है? Tell me on chat. 62.5 is, देखो 0.5 डेसिमल में आया तो 8 बेस होना चाहिए लार्जली, राइट. और 12 5 60 के आसपास है ये, तो ये 5/8 होगा मोस्ट प्रोबेबली, राइट. तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन आ गया, बट यही है वैल्यू. 62.5 इज 5/8 ऑफ 288. नाउ इट इज इजियर टू कैलकुलेट, है ना, बिकॉज यू विल बी लाइक ओके आई कैन सॉल्व इट लाइक दिस, है ना. 8 3 24, 8 6 48, तो 36 5 इज 180. आ गया आंसर, है ना. सही है. वैसे ही इफ दे आस्क यू 28.56 of 392. Do you see this in table anywhere? Good, good. Do you see this in table anywhere?
आई डोंट थिंक यू सी दिस इन अ टेबल, बट ये कौन से फॉर्मेट का है? 28 2 जा 56 वाले फॉर्मेट का है ना? 28 2 जा 56 वाले फॉर्मेट में है। तो तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना 7.14 था, फिर 14.28 था, ये 1/7 था। डू यू रिमेम्बर 14.28? अब दिस इज एग्जैक्टली 2 टाइम्स ऑफ 14.28, है ना? वेरी गुड गायत्री। सो दिस इज टू टाइम्स ऑफ 14.28, है ना? तो 14.28 तुम्हारा 1/7 था, तो ये 2/7 हो गया। So this becomes 2/7 of 392 अगेन। बताओ आंसर, बताओ फटाफट, क्या होगा? यस, 112, राइट। चलो अब ये करो, डू दिस। नाउ नाउ आई वांट क्विक आंसर्स, ओके? और मुझे क्विक आंसर्स कहाँ मिलेंगे? पर्सनल चैट पे। यहाँ पे देयर इज एन ऑप्शन टू डू पर्सनल चैट आल्सो, कि नहीं है? तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है क्या पर्सनल चैट करने का, कि पब्लिक चैट ही है? पर्सनल चैट का है ना ऑप्शन? यस, इट्स देयर, राइट? तो पर्सनल चैट, सो दैट वी डोंट अफेक्ट एनीबडी एल्सेस थॉट प्रोसेस। एवरीबडी आंसर्स मी पर्सनली, सो दैट आई कैन ट्रैक योर परफॉर्मेंस आल्सो, कितना समझ रहा है। बताओ 66.66 कैसे होगा? गुड, वेरी गुड। आंसर दे दो गायत्री, फाइनल। 66.66 को याद रखने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका है 33.33 का 2 टाइम्स है, ये 33 1/3 का 2 टाइम्स इज 2/3। एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका हमको याद होना चाहिए कि 6.66 ये तुम्हारा 1/15 है, तो 66.66 ये 10/15 हो गया। 10/15 इज ऑल्सो अगेन 5 2 जा 5 3 जा तो 2/3 ही है, मतलब एट द एंड 2/3 है ये, है ना? टू थर्ड ऑफ 855, विच इज आई थिंक मेगा 855 570, है ना? हाँ, 35। ठीक है, चलो सही है, बढ़िया है। अब डू द फोर्थ वन। यू डिड नॉट गेट द फर्स्ट वन, दिस वन गायत्री, ये तो बेटा टेबल में ही है। टेबल जो मैंने करवाया ना उसमें देखना तुम, 5/8 का ये वैल्यू है। लर्न कर लो बस, और कुछ नहीं। आई जस्ट टोल्ड यू द ट्रिक टू रिमेम्बर इट, बट आइडियली यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट, है ना? पहले मेमोराइज होगा फिर ट्रिक होगा ना। तो 5/8 है बस। ओ ओ ओ, सो 1/16 इज 6, ओके, करेक्ट। करेक्ट ना, 1/16, ओके। सो इसमें गायत्री का ये कहना है कि दिस वॉज 1/16, 1/16 वॉज 6.25। आई अग्री, बट ये 62.5 था ना, मतलब ये 10/16 हो गया ना। 10/16 इज 5/8 ना। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? या, ओ यस यस, गुड। अब हाउ वुड यू डू दिस वन? 42.84, अगेन इट इज ऑफ अ पैटर्न टूजा, है ना? 42 2 जा 84, तो ये 1/7 वाले ही मल्टीपल्स में आएगा। ठीक है, तो 1/7 हमें पता है 14.28 है। 2/7 अगर हम करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा। 3/7 अगर हम करेंगे तो 14 3 जा 42 आता है, राइट? तो ये 3/7 होगा। सही है। हमको जैसे ही दिखता है ना कि ऐसा नंबर है कि फर्स्ट नंबर और डेसिमल के बाद उसके 2 टाइम्स डेसिमल के बाद वाला नंबर है, सो 7 बेस वाला फंडा है ये। सो दिस बिकम्स 3/7 ऑफ 735। ठीक है, ओके, ओके कूल, बढ़िया है। चलो ये करो अभी। वो तो हमने ऑफ कर दिया, अभी लेस देन मोर देन कैलकुलेशंस करेंगे हम फटाफट। वन आई डू फॉर यू, द अदर्स यू गाइस विल डू ऑल बाय योरसेल्फ। तो दिस इज वेयर वी आर लर्निंग हाउ टू क्विकली रिमेंबर। ठीक है, अब 37.5 हमको करना है। 37.5 हमें पता है 3/8 है, फ्रॉम द टेबल वी गेट टू नो। ठीक है, और अभी मोर बोला है। मोर मतलब इट इज 1 + 3/8, राइट? 37.5 मोर मतलब 1 + 3/8 ऑफ 560। फ्रैक्शंस का एडिशन आता है सबको यहाँ पे? आई होप, आई होप फ्रैक्शंस का एडिशन आता है। 1 + 3/8, दिस बिकम्स 11/8 ऑफ 560, है ना? विच इज विच इज 7 जा, दिस बिकम्स
770 सही है ना। अब वैसे ये करो 16.66 करो 16.66 लेस 16.66 इज 1/6 सो इट्स 1 माइनस 1/6 क्योंकि लेस बोला है दिस इज नथिंग बट सही है। और हमें एक बेसिक क्रॉस चेक होता है कि अगर इससे मोर बोला है तो इससे बड़ा नंबर आना चाहिए, इससे लेस बोला है तो इससे छोटा नंबर आना चाहिए आंसर। ये भी बेसिक चेक्स होते हैं जस्ट इन केस जल्दी जल्दी में तुम लोग कुछ मुफत हो जाए। ठीक है सही है ये। वी आर मूविंग अहेड। यस नाउ आई वांट आंसर्स 1% चैट फॉर दीज। अगर ये चीजें तुम्हें ऑलरेडी आती है ना सो देन योर pursuit right now should be to answer it in seconds or answer it orally, right? It's not कि मुझे ये आता है तो मैं इग्नोर करूंगी अभी मैं बैठ जाऊंगी, no. Now then it becomes about how focused can I be, how confident can I be, how quickly can I do this, because exam is about that, right? Second one, meanwhile I'll do this. 87.5 is 7/8, more बोला तो 1 plus 7/8 of 15/8 of हाँ by the way, okay cool, यहाँ पे भी मैं आऊंगी once you give me second answers. 0.75 है तो 16 ही बेस है। Good. That's 7/16 लेस बोला है क्या? ओके सो इट्स 1 minus 7/16 of 304 which is है ना। अब बात यह है कि हाउ डू वी लर्न टू ये फास्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट दिस फास्ट। स्पीड मैथ्स का क्लास में अलग से लेने वाली हूँ वैसे। आइडियली आई वाज सपोज्ड टू टेक इट फर्स्ट बट आई थॉट आई स्टार्ट विद परसेंटेज, स्टार्ट विद समथिंग मोर सॉलिड। थोड़ा सा तुम्हें स्ट्रगल करने देती हूँ कैलकुलेशंस में, छोटा छोटा करके तुम्हें थोड़ा बताती हूँ एंड देन आफ्टर वी आर डन विद लाइक 3-4 चैप्टर्स उसके बाद वी लर्न स्पीड मैथ बिकॉज देयर विल बी मोर कॉन्टेक्स्ट टू इट, है ना। इसीलिए चलो सो अभी हमें 15 into 56 करना है। हाउ टू डू दिस वेरी क्विकली ओरली नॉट ओरली बट इवन मैन्युअली हाउ टू डू इट क्विकली मैं तुम्हें बताती हूँ। सो 15 इज स्प्लिट एज 10+5, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से तुम 56 into 10 कर सकते हो एंड 56 into 5 कर सकते हो, दोनों को कर सकते हो add। ये इजीली 560 हो जाता है। और इंटू 10, 56 into 10 अगर 560 है तो 56 into 5 उसका हाफ होगा, राइट, बिकॉज 5 इज हाफ ऑफ 10। सो 56 का हाफ कितना होता है? 28। ये आएगा 840 एज एन आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन मैन्युअली ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू क्विकली do calculations without having to do your traditional 56 into 15 and all of that, है ना। तो 15 को स्प्लिट कर दिया, स्मार्ट। और एल्स another way to do it is the other way to do it is 15 into 60 - 4, ये भी कर सकते हो। 56 को मैंने 60 - 4 लिख दिया, है ना। तो कर सकते कि नहीं कर सकता है ना। तो हमें पता है कि 15 × 6 = 90 होता है तो ये 900 है, माइनस 15 × 4 = 60 होता है तो दिस इज 840 अगेन। either way, so whenever you have these two big numbers now you can split one of those numbers in this format, addition and subtraction of some other convenient numbers, ठीक है। so this is how you can do it as well। अब ये 9/16 है, अब ये 9/16 को तो थोड़ा सा मैन्युअली तो करना पड़ेगा हमको। दिस विल बी 4 ज़ा 4 7 ज़ा 4 6 ज़ा, राइट। 16 का टेबल आता होगा तो बहुत अच्छी बात है। 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36। अब 19 into 9 जब है तब हमें पता है दिस इज सॉरी ये तो टेबल है, राइट। तो 19 का टेबल हमको पता है। जिसको नहीं पता है अगेन यू कैन डू 19 into 10 - 1, 190 - 19 बेसिकली द सेम मेथड, राइट। सही है चलो। अब सो दिस वाज इट, ठीक है। ये मोर परसेंटेज लेस दो चीजें थी इसका पार्ट। वन वाज मेमोराइजिंग द वैल्यूज सो दैट यू रिमेंबर एंड द अदर वाज हाउ टू स्मार्टली मल्टीप्लाई एंड क्विकली फाइंड आंसर्स, ओके।